السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمزی شفا نور آصف کے ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں، اور مجھے بتائیں کہ آپ ہارر سٹوریز میں انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں، کیونکہ شاید میں ایک آدھا ناول ختم کر اور ہارر سٹوریز سٹارٹ کروں۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں، پھر میں ریکارڈ کر آپ لوگوں تک ہارر سٹوریز پہ لے کر آؤں گی۔ چلیں جی، باقی کی باتیں بعد میں کرتے ہیں، چلتے ہیں ناول پر۔ ارحام نے پوری قوت سے شاہ نواز کی آنکھوں پر لات رسید کی۔ اس کی آنکھیں سوج کر نیلی ہو چکی، وہ اب آنکھیں کھول بھی نہیں پا رہا تھا، وہ صرف اب لوٹ پوٹ ہوتا ڈر سے چیخ رہا تھا۔ تمہیں نہیں چھوڑوں گا شاہ نواز، تم نے جو آج کیا وہ معافی کے لائق نہیں ہے، میری حور پر بری نظر رکھی تو۔ ارحام نے پسٹل شاہ نواز کے سینے پر تانی تھی۔ خان، اس کو معاف کر دو، ہم سچ کہہ رہا ہے، ہم پریزے کی قسم کھاتا ہے، حور کو ایک نظر بھی شاہ نواز نے نہیں دیکھا، ہم جتنا بھی گر جائے مگر اتنا جانتا ہے کہ ایک عورت کا عزت کیا ہوتا ہے، حور سے جتنا بھی دشمنی سہی مگر ہم کبھی بھی اس کا عزت پر آنچ نہیں آنے دے سکتا، ہمارا بھی بیٹی ہے، ہم اتنا نہیں گر سکتا۔ خان، شاہ نواز کو چھوڑ دو، تمہیں تمہارا بیٹی کا واسطہ۔ گل ارحام کے آگے ہاتھ جوڑتے گڑ گڑاتے ہوئے بولی۔ ارحام گل کو ایک نظر دیکھتے شاہ نواز کے نیم جاں وجود کو زوری قوت سے ٹانگ رسید کی تھی۔ وہ پسٹل اپنے کوٹ کی جیکٹ میں ڈالتے تیزی سے بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ارحام تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر والے پورشن میں داخل ہوا تھا۔ راہداری اور برآمدے سے گزرتے سامنے بنے کمروں میں سے ایک کمرے کے دروازے پر لگے تالے پر فائر کرتے وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ جو بیڈ پر گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی، دروازے پر فائر کی آواز سنتے ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ خوف سے اس کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ ارحام کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ جلدی سے بیٹھ سے اتری۔ اور کی چادر زمین بوس ہوئی تھی، وہ پچھلے 7 گھنٹوں سے اس کمرے میں بند تھے۔ ارحام کو کوئی اپنے سامنے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ جلدی سے ارحام خان زادہ کی طرف بڑھی، مگر ارحام کی سر سو آنکھیں اس کا غضبناک چہرہ دیکھ کر وہ کمرے کے وسط میں رک گئی۔ چہرے پر یکدم زردیاں کھلی تھی، پورے بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ ارحام غصے سے اس کی طرف بڑھا، اس کی طرف بڑھتے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیا، اس کے بالوں کو بے دردی سے جھٹکا دیے، اس کے چہرے کو اپنے مقابل کیا اور اس کی بے رحم گرفت پر سسک کر رہ گئی۔ ارحام حور نے تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ ارحام نے اس کے بغیر چادر کے وجود پر قہر بار نگاہ ڈالی تھی۔ کیوں ہو؟ کیوں؟ وہ حلق کے بل پاگلوں کی طرح دھاڑا تھا۔ حور کے بالوں کو اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ اس کی گرفت میں بری طرح لرزتے تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچ رہی تھی۔ ارحام اس کی زرد رنگت کی خشک ہونٹ اور چہرے پر بے انتہا خوف دیکھتا اپنے جبڑے بری طرح بھیج گیا تھا۔ اسے ایک ہی جھٹکے سے چھوڑتے اپنا ہاتھ اتنی زور سے دیوار پر مارا تھا کہ خون کی چھینٹیں اڑتی ارحام کے چہرے پر گری تھی۔ حور چیختے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ کچھ پل اس کے لرزتے وجود کو خشمگین نگاہوں سے گھورتا رہا۔ جی کر رہا تھا اسے اپنے سامنے کھڑے نازک ندام وجود کو آج روک ڈالے، جس نے آج ہر حد پار کر دی تھی۔ چادر اوڑھو، ارحام نے حور کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے ضبط سے کہا۔ حور نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی چادر زمین سے اٹھا کر اوڑھتے اچھی طرح سر پر جمائی، وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ ارحام کا چہرہ غضبناکی کی کیفیت لیا ہوا تھا، اس کے غصے کا سوچتے اس کے سامنے اپنے نکاح کی پہلی رات آ رہی تھی، وہ دوبارہ ان تکلیف و لمحات سے نہیں گزر سکتی تھی۔ آج تو مقابل کا چہرہ اس دن سے کئی گنا زیادہ سرخ اور غضبناک تھا، آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ حور کی آنکھوں کے آگے یکدم اندھیرا چھایا، اس نے جلدی سے دیوار کا سہارا لیا۔ ارحام یہ دیکھتا غصے سے اس کی طرف بڑھا، اس کے خوف سے وہ ایسے ہی غش کھا کر گر پڑتی۔ وہ نہیں چاہتا تھا آج وہ اپنے ہوش گوائے۔ خبردار حور، آج جو تم نے ہوش گوائے تو ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ اس کا بازو جکڑے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ نہیں مما، میں نہیں ہوش گواؤں گی۔ وہ ارحام کے خون اترے آنکھوں کو دیکھتے بمشکل بول، اسے یوں اٹک اٹک کر بولنے پر ارحام نے اپنی آئیبرو مسلتے ہوئے خود پر قابو پایا تھا۔ سامنے کھڑا نازک وجود کہاں اس کی سختی برداشت کرنے کے قابل تھا۔
निकाह करो। अरहाम ने इसे छोड़ते दरिस्तगी से कहा। वो गहरे सांस लेते कांपते हुए नकाब करने लगे। अरहाम के हाथों से लर अरहाम इसके हाथों की लरजाहट देखते इसे घूर कर रह गया था। इससे इतना डरने के बावजूद भी वो इतना बड़ा कदम उठाते गुल से मिलने चली आई थी। अच्छी तरह जानती थी गुल इसे कितना हसद करती है। वो इसे फूलों का हार पहनाने से तो रही, और शाहनवाज की बुरी नजरों को भी जानती थी। फिर इतनी बेवकूफी करके यहाँ चली आई। वो नकाब कर चुकी तो अरहाम इसकी कलाई पकड़े दरवाजे की तरफ बढ़ा। नकाब वो घबराहट और खौफ से ठीक तरह न कर सकी, इसलिए वो लूज होता चेहरे से गिर चुका था। अरहाम ने इसके खुले चेहरे को देखते इस पर खूंखार नजर डाली थी। वो और जल्दी से घबराते हुए नकाब करने लगे। एकदम अरहाम ने इसका हाथ पकड़ा। ये किसने किया? अरहाम ने इसके गाल पर उंगलियों के निशान पर हाथ फेरते हुए सर्द लहजे में पूछा। गुल गुल ने और ने कांपते लबों से बताया। अरहाम ने ये सुनते जब्त से मुठ्ठियां भींची थी और कांपते हाथों से निकाब करने लगी। मगर अरहाम के खौफ से इससे निकाब नहीं हो रहा था। जिसे अरहाम देखता इसे कमर से थामे नरमी से अपने सीने में खींच गया था। वो अरहाम के सीने के साथ लगी हुई यकीनों से इसकी धड़कनें सुन रही थी। रिलैक्स रहो, कुछ नहीं कह रहा तुम्हें, ना कुछ कहूंगा। इसका बुरी तरह कपकपाना महसूस करते अरहाम ने जबड़े भींचते नरम लहजे में कहा। इसका गुस्सा होर पर वैसे ही कायम था। वो यहाँ कैसे और क्यों पहुंची, इन सब सवालों के जवाब वो घर जाकर लेने का इरादा रखता था। इस बेवकूफी की वजह से फरीजे इसके हाथ से निकल गई थी। वो खुद शाहनवाज जैसे घटिया इंसान की हवेली में चली आई। अगर इसे कुछ हो जाता तो वो इस सब के लिए इसे माफ करने का इरादा नहीं रखता था। मगर जिस बुरी तरह घबरा रही थी, अभी के लिए इसे खुद पर काबू पाना ही। वो इतनी खौफजदा थी कि अरहाम के सीने के साथ लिपटी रो भी न सकी। अरहाम के सीने सर उठाए इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े फिर यकीनी से इसे देखा था। अरहाम की क्रिस्टल ब्राउन हिरने की तरह सहमी आंखों में देखते अपनी निगाहें फेर गया था। वो जिस तरह देख रही थी, अपना गुस्सा इश्तियाल सब खत्म होता महसूस हो रहा था। आंखों में खुद के लिए इतना डर खौफ अच्छा नहीं लगा था। अरहाम ने नरमी से इसकी आंखों के गोशों पर भराती नरमी से अपने अंगूठों से साफ की। कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें, अच्छी तरह चादर ओढ़ो, अरहाम ने नर्म लहजे में कहा। सच में? हूर ने भी यकीनी से सिसकी लेते पूछा। अरहाम के लबों पर मध्यम से मुस्कुराहट रक्सा हुई। बिल्कुल सच, अरहाम ने कहते अच्छी तरह चादर इसके सर पर उठाई। नकाब रहने दो, गाड़ी में बैठकर आराम से कर लेना। और अभी भी इसे बेयकीनी से देख रही थी। शायद इसे यकीन नहीं आ रहा था। अब चलो। अरहाम इसे एक नजर देखता इसकी कलाई नरमी से थामे सीढ़ियों से उतरा। सीढ़ियों से उतरते हूर की नजर शाहनवाज के जख्मी हालत नीम बेहोश वजूद पर पड़ी तो वो खौफ से अरहाम से दूर हुई थी। जिसे देखते अरहाम ने इसे मजीद अपने करीब करते इसे अपने बाजू के हल्के में लिया। रिलैक्स रहो, अरहाम ने इसे नरमी से खुद के करीब करते कहा। इसकी कलाई नरमी से पकड़े वो सीढ़ियों से उतरा। गुल जो शाहनवाज के पास बैठी रो रही थी वहां से उठती अरहाम के मुकाबले आई। खान, इस लड़की ने तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर दिया, तुम्हें रुसवा कर दिया, तुम पर इल्जाम लगाया। तुमने इसके लिए इतना जुनूनी क्यों है? हमको भी भरे जिरगे में तुमने तलाक दिया था, तो आज फरीजे की खातिर तुम इसको भी तलाक दे सकता था। इसको तलाक दे देगा तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हम बख्तावर खान से तलाक ले रहा है, हम फिर से एक हो सकता है। छोड़ दो इस लड़की को, तुम्हारा मोहब्बत तो हम है। वो अरहाम के सामने आती रोते हुए चीखी थी। मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हारा इसीलिए लिहाज कर रहा हूँ, तुम मेरी बेटी की माँ हो, वरना तुमने जो आज किया है इसकी सजा मौत थी। अरहाम गुल पर कहरबार निगाह डालते आगे बढ़ा। खान, तुम हमको सिर्फ सजा दे रहा है जो हमने तुम पर एतबार न करके तुमको दी थी, वरना हम जानता है तुम आज भी हमसे मोहब्बत करता है। अगर तुम हमसे मोहब्बत ना करता तो हूर पर हमारा उतरन ना होता। हूर का बदन पर हमारा उतरन होना इस बात का सबूत है। तुम आज भी सिर्फ हमारा है। तुम सिर्फ हमसे ही ला ताल्लुकी और नफरत का नाटक करता है। गुल की बात पर अरहाम की नजरें यकदम हूर पर पड़ी थी, जिसकी जख्मी नजरों में शिकवा देखते वो अपनी मुठ्ठियां भींच गया था। हूर के बदन पर गुल का लिबास होना इसे शदीद तकलीफ से दो चार कर गया था।
लिबास हूर के बदन पर था, आग की लपटें इसे खुद से उठती महसूस हो रही। अरहाम ने पलटते हुए गुस्से से पूरी कुवत से गुल के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। गुल गाल पर हाथ रखे अरहाम को देख रही थी। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, इस थप्पड़ से तुम्हें पता चल गया होगा। अरहाम गुल को देखते गुस्से से बोला। पूर्ण को नुकसान पहुंचाने से पहले तुम सिर्फ इतना सोच लेते कि ये मेरी औरत, मेरी इज्जत है। तुम नहीं तो आज तुम्हें ये थप्पड़ ना पड़ता। बख्तार खान से तलाक लेने से बेहतर है तुम इसके साथ अपना रिश्ता बेहतर बनाओ, क्योंकि इसे तलाक लेकर अगर तुम ये सोचती हो कि मैं तुम्हें अपनाऊंगा, ये तुम्हारी भूल है। अब दोनों ये निशान तुम्हारे गाल पर तुम्हें बताएगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। अरहाम एक एक लफ्ज चबाता गुल पर जहर खन नजर डालता हूर की कलाई थामे कि जान में बढ़ गया था। हसन मियार खान ने कमरे में दाखिल होते ही आबिर को बहुत एहतियात से सोफे पर बिठाया और उसके कदमों में पंजों के बल बैठकर इसका पांव पकड़ा। आबिर अब जोरों कतार रोना शुरू हो चुकी थी। कांच काफी गहराई तक अंदर गया हुआ था। आबिर ने दर्द की शिद्दत से कराहते हुए अपना पांव खींचा तो असफर ने नजरें उठाकर आबिर को देखा, जो अब बच्चों की तरह हिचकियों से रो रही थी। क्या बहुत दर्द हो रहा है? असफर ने उसकी हालत देखते पूछा। आबिर चेहरा हाथों में छुपाकर शिद्दत से रो दी थी। असफर इसे देखकर गुस्से से जबड़े खींचकर रह गया। अभी से जख्मी पैर के साथ पांव पर वजन डाले खड़ी थी और अब इतनी ही शिद्दत से रो रही थी। हसन इसके पांव का अच्छी तरह मुआयना करते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। ड्रेसिंग रूम के कबर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर लाया। आबिर के कदमों में वो दोबारा इससे पंजों के बल बैठा था। आबिर के पांव को पकड़ा तो आबिर ने तकलीफ की शिद्दत से रोते हुए अपना पांव हसन के हाथों से खींचा। आबिर, डोंट एक्ट लाइक अ चाइल्ड। कांच निकालना पड़ेगा। हाथ नहीं लगाने दोगी तो कैसे निकालूंगा? असफर ने इसकी पिंडली पर गिरफ्त मजबूत करते सख्ती से कहा। आप रहने दें, मतलब मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आबिर ने रोते हुए कहा। ऐसे कैसे? आबिर, कांच ज्यादा देर अंदर रहेगा तो इन्फेक्शन हो जाए। इसके बाकी के लफ्ज हल्क में ही दम तोड़ चुके थे। वो इसकी साहिराना खूबसूरत नपूंछ में बुरी तरह उलझा था। असलम की गहरी गर्म निगाहें इसके खूबसूरत चेहरे पर एक पल के लिए रह गई। केसरी में आंखें रो रोकर गुलाबी हो चुकी थी। नाजुक नाक और आरस भी गुलाबी हो रहे थे। वो सर नफी में हिलाते हुए मुसलसल इसे पाँव को छूने से मना कर रही थी। आबिर के कानों में पहने हुए झुमके भी हिल रहे थे, जिन्हें छूने की ख्वाहिश एकदम असफन यार खान के दिल में पैदा हुई थी, बेदार हुई थी। इसने बेख्तियार होते इसके हिलते झुमके को नरमी से छुआ। वो भी सिसकियां भर रही थी। असफर ने हाथ बढ़ाकर नरमी से उसके गाल पर बहते आंसू साफ किए। आबिर असफर की एक्ट पर स्टिल हुई थी। दोनों की गहरी निगाहें एक दूसरे के चेहरे पर जम गई थी। आबिर असफर यार खान की नीली आंखों में देखते स्टिल हुई थी। वो इस वक्त अपने पाँव में उठती शदीद तकलीफ भी भूल चुकी थी। वो इसकी साहिराना आंखों की कशिश में डूबी थी, जिसके दिल की धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर कर चुकी थी। हसन यार खान के बदन से उठती स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू से आबिर के हवास मुअत्तल हो रहे थे। इसकी इतनी सी नजदीकी पर वो तब तक कंधारी हो गई थी। हसन की गहरी गर्म निगाहें आबिर के खूबसूरत नगोश में उलझ कर रह गई थी। इसकी गर्म निगाहें दीवानावार खुद पर महसूस करते आबिर की घनी पलकों की झालर खुद ब खुद इसके आरस पर सजदा जेर हुई थी। हसन ये मंजर देखता महवत सा हुआ। हसन ने देख तैयारी में घुटनों के बल बैठते इसका खूबसूरत चेहरा हाथों में था, इसके गुलाबी लबों पर अपनी सांसों का तसल्लुत जमाया। आबिर की धड़कनें जैसे थम गई थी। आबिर के आंसू भी रुक गए थे। असलन का लम्स इतना शिद्दत से इतनी तपिश की लिए हुए था, वो सिसकते हुए इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी। वो इसके लबों को अपने लबों में कैद किए मुसलसल अपनी शिद्दत बढ़ाए जा रहा था। वो इस वक्त अपने पाँव का दर्द भूल गई थी। वो इतनी शिद्दत इससे इसके लबों पर ढा रहा था कि इसकी बेरहम शिद्दत पर आबिर की आंखों से आंसू टूटकर रुख पर बरस रहे थे। इसका लम्स इतना दीवानगी लिए हुए था, इतना निकाह की रात को भी नहीं था। आबिर की आंखें बंद हो चुकी थी।
मसलन यार खान के बालों में उंगलियां चलाए इसकी शिद्दत, इसका बेरहम लम्स अपने नाजुक लबों पर बर्दाश्त करने लगा। इसका महरम एक रात की गुर्बत अता करके इसे भूल गया था, मगर वो इस एक रात का, इस सितमगर का लम्स अभी तक नहीं भूल पाई। असद ने पूरी शिद्दत से इसकी बालाई लब पर अपने दांत काढ़े। आबिर हिचकी लेते मजीद असफन यार खान के करीब हुई। वो इसकी दीवानगी बर्दाश्त करते हर हद जा सकती थी, मगर कभी भी इसे खुद से दूर छटक नहीं सकती थी। वो आज इसकी सांसें भी चुरा लेता, उफ न करते। आबिर की सांसों का तसल्लुत अब टूट रहा था। वो बेरहम बना इसकी सांसें पी रहा था। इसने अभी भी इसे खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की थी, मगर इसकी बेरहमी पर आबिर की असफन यार खान के बालों में चलती उंगलियां साबित हुई थी। असफन यार खान ने इसकी रुकती सांसें महसूस करते, इसका बेजान होता वजूद महसूस करते इसे अपने बेरहम लम्ब से आजादी दी। आबिर ने गहरी सांस लेते असफन यार खान की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े बहते आंसुओं से इसे देखा। इसके गुलाबी और नरम नाजुक लबों पर खून की नन्ही नन्ही बूंदें आज ठहरी थी। हसन ने अपनी बेतरतीब होती सांसें बहाल करते अपनी गहरी निगाहें इसकी हेजल ग्रे आंखों से हटाई थी, जहां इसकी शिद्दत पर पानी जमा था। हसन ने इसकी गहरी आंखों से नजरें हटाते अपनी बीवी के नाजुक लबों पर अपनी नजरें गाड़ी, जिन पर इसने सितम की इंतहा कर दी थी। वो पागल दीवानी ये सितम खामोशी से सह गई, इसे एक मर्तबा भी झटका नहीं लगा। असद मुस्कुराते हुए इसकी थोड़ी को नरमी से पकड़े, उसके लबों पर फिर से झुका। वो असफन की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े फिर से अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। वो इसका बेरहम लम्स सहने को फिर से तैयार थी। असफन ने नरमी से इसके गुलाबी लबों से खून की बूंदें अपने लबों से चुनते इसके लबों को बहुत नरमी से अपने लबों की गिरफ्त में लिया था। इसका एक हाथ आबिर की पिंडली पर नरमी से सरसरा रहा था। वो आंखें बंद किए मुकम्मल तौर पर असफन यार खान के नरम लम्स में खोई हुई थी। एकदम असफन इसका पांव जकड़े इसी के तलवे में पेवस्त कांच का टुकड़ा बहुत बेरहमी से एक ही झटके में खींच कर निकाल गया। आबिर इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े चीख उठी थी। वो बुरी तरह रोते हुए असफन यार खान के दोनों कंधे दबोच गई थी। असफन लब नीचे इसके जख्म पर कार्टन रखे हुए था, जहां से खून भल बह रहा था। आबिर हिचकियां लेते इस बेरहम को देख रही थी, जिसने इसे बिना बताए बहुत बेरहमी से कांच का टुकड़ा निकाला था। तकलीफ की शिद्दत इतनी थी कि इसका पूरा वजूद हिचकोलों से लरस रहा था। असफर ने नजर उठाकर इसे इसके सख्ते वजूद को देखा। आबिर ने शिकवा किना निगाहों से इसे देखते नरूठे अंदाज में अपना मुंह फेरा था। इसके मासूमाना ऐब पर असफर यार खान के लबों पर मुस्कुराहट आ ठहरी थी। क्या थी ये लड़की, अभी इतनी सख्ती से मोहब्बत में नर्म और नाजुक लबों पर बर्दाश्त कर गई थी, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी चुरा लेता वो उफ ना करती। अब कांच निकालने पर इस तरह से रूठ गई थी। आई एम सॉरी आबिर, ये करना जरूरी था तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए। अब मैं तुम्हारे करीब आया, वरना तुम कभी मुझे कांच न निकालने देते। हसन यार खान की बात पर इसकी निगाहों में भी यकीनी उभरी। इसका दीवानगी भरा लफ्ज, इसकी शिद्दत, सब झूठ था। वो सिर्फ इसकी वजह से इसके करीब आया था। वो अपनी बात से इसे आसमान समेत जमीन पर पटक गया था। तौहीन व खजालत के एहसास से इसका चेहरा सूख हुआ। इसने तो असलन की शिद्दत में इसकी दीवानगी, इसकी ख्वाहिश महसूस करते इसका पूरा पूरा साथ दिया था। वो आंखों में शबनम लिए इस सितमगर को देख रही थी। हसन मियां खान इसकी बेयकीन जख्मी निगाहों का मफहूम जानते अपनी नजरें चुरा गया था। आबिर एक ही झटके से हाथों से अपना पाँव बेदर्दी से खींचते सोफे से उठी। सोफे से उठने से शदीद दर्द इसके पैर में सरायत होता महसूस हुआ। वो आंखें नीचे इस दर्द को बर्दाश्त कर गई। असफंदी से देखता जमीन से उठा था। आबिर आगे बढ़ी तो असफंद इसे बाजू से जकड़े खुद के मुकाबिल कर गया था। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? पाँव की ड्रेसिंग तो करने दो, कितना खून बह रहा है। असफंद इसके पागलपन पर चीखा था। वो शदीद तकलीफ में अपने जख्मी पाँव के वजन पर खड़ी थी। इसके बदन की कपकपाहट से साफ जाहिर था वो बहुत मुश्किल से खड़ी है। ये दर्द मेरा है, खून मेरा बह रहा है। आपके साथ मसला क्या है? मुझे नहीं करवानी आपसे कोई भी ड्रेसिंग, छोड़े मुझे। आबिर हसन यार खान की नीली आंखों में देखते घबराए।
इसे इस टाइम खुद से शर्म आ रही थी अपनी तजलील पर। इसकी रूह भी जैसे मातम कदा थी। वो थोड़ी देर पहले इसकी शिद्दत में इसका भरपूर साथ दे रही थी। वो उसकी शिद्दत, इसकी ख्वाहिश समझ बैठी थी, मगर इसके पास तो आज भी इसके करीब आने की वजह थी। वो इतनी आज़ारा थी कि इसके शौहर को कभी इसकी जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। ये सोचते हुए जख्मी परिंदे की माने जैसे फड़फड़ा रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हें क्या मसला है कि इस बात की तुम्हें तकलीफ पहुंच रही है। हसन आबिर को देखता है इस्तेज़ाइया मुस्कुराया था। आबिर इसकी इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट में छुपा मतलब समझते अपनी आंखें मीच गई थी। वो इसका दर्द, तकलीफ समझ चुका था। अपने ही जज्बे अयां होने पर वो कर्ब से आंखें नीचे हुए थी। असलम की गहरी नजरें अपनी बीवी के कपकपाते वजूद से होती। इसके जख्मी लबों, ये सच था। मैं उसके करीब इसका ध्यान बटाने के लिए गया था, मगर उसकी गुलाब जैसी नर्म और नाजुक पंखुड़ियों को छूने की देर थी। वो बेकल सा जा होता अपनी सारी तड़प, अपना सारी जुनून इसके लबों पर उतार चुका था, जो निकाह की रात के बाद इसके अंदर प्यास का सहरा जगा चुकी थी। वो ये गुलाब की पंखुड़ियां एक बार फिर से छूने को तड़प सा गया था। वो बेख्तियारी में फिर से इसके लबों के करीब हुआ। आबिर अपने लबों पर इसकी गर्म पुरहिद्दत सांसें महसूस करके अपनी आंखें खोल गई। आबिर ने पूरी कुव्वत से इसे खुद से दूर धकेला था। हसन जो बेखुद सा इसके लबों पर झुक रहा था, इसके धक्के पर लड़खड़ा कर रह गया। इसके यूं झटकने पर असम की आंखें पल में अंगारा हुई थी। अब किस लिए मेरे करीब आ रहे थे? पहली रात इसलिए करीब आए, मेरा स्टेमिना चेक करना था, मैं आपको बर्दाश्त कर सकती हूँ या नहीं। थोड़ी देर पहले मेरे करीब आए क्योंकि मेरा ध्यान बटाना था, और अब क्या जवाब है? आप मेरे पास मेरे करीब आने। आबिर हंसियाने चीखी थी। गलती मेरी है जो मैं तुम्हारे करीब आया, तुम इस काबिल भी नहीं थी। तुम्हें एक रात भी कुर्बत बख्शी जाती। वो आबिर पर अपनी सुर्ख नजरें गाढ़े बोला। आबिर का ऐसे झटकना इसके अंदर शोले भड़का गया था। बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसका इतना सा भी झटकना। आबिर इसकी बात सुनते माही पे आग की तरह तड़प उठी। इस दिन आपने कहा था, आप मुझे एक रात की दुल्हन बनाकर ताउम्र कांटों पर घसीटना चाहते हैं। मैं मैं आपसे कहती हूँ कि आप एक मर्तबा और मेरे करीब आ गए, तो मेरा पूरा वजूद आपके लम्ब से कांटों पर घिसट जाए। अब जिंदगी भर मेरे करीब ना आए। आबिर अपनी अंश शहादत की उंगली उठाए हसन यार खान की नीली आंखों में देखते बोले। हसन इसकी बात सुनते ही शोलों में गिरा था। इसके लफ्ज इसे कांटों पर घसीट चुके थे। हसन इसे बालों से जकड़े इसे अपने मुकाबिल कर गया। अच्छा, ऐसी बात है तो अभी थोड़ी देर पहले मेरी शिद्दत में मेरा साथ क्यों दे रही थी? मैंने जितनी बेरहमी शिद्दत ढाई तुम्हारे लबों पर, तुमने वो आंखें मीच कर मुझसे लिपटते क्यों सही? हसन इसकी हेजों में आंखों में देखते हुए बोला, पछता रही हूँ। अब वो लफ्ज बिच्छू की मानंद मुझे डस रहा है। आबिर असफंयार खान की आंखों में देखते सपाट लहजे में बोल, तो असफंयार खान के चेहरा खून छलकाने लगा। आंखें लाल अंगारा हुई। असफन इसे एक ही झटके से छोड़ गया था। आबिर इसकी इस तरह से एक ही झटके से छोड़ने से लड़खड़ा थी। दूसरे ही पल वो खुद को संभालती तेजी से वॉशरूम में दाखिल हो गई। दरवाजा पूरी कुवत से धाड़ से बंद किया गया था। असफन वहां खड़े अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रहा था। इसके लफ्ज तीर की तरह पेवस्त हुए थे दिल में। इस लड़की का झुटकना, इसके अल्फाज इसके कांटों पर घसीट चुके थे। इसका लफ्ज इसे बिच्छू की मानंद महसूस होता है। इसे ये अल्फाज याद करते असफन गुस्से से दीवार पर पंच मारते गहरे सांस लिए थे। वतन इसकी नजर फर्श पर पड़े इसके खून के रंग बिरंगे पैरों के निशान पर पड़ी थी। हसन ये देखता परेशान हुआ था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनकर बलक भीज गया। ये कौन सा टाइम था शावर लेने का, वो भी इतनी सर्दी में। वो गुस्से से वॉशरूम की तरफ बढ़ा। लॉक पर हाथ रखने से दरवाजा खुलता चला गया। वो गुस्से में लॉक करना भूल गई थी। दरवाजा खोलने पर जो मंजर असफन यार खान को देखने को मिला, वो इसे मजीद तैश और इश्तियाल में मुब्तला कर चुका था। हसन यार खान तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। वो रूफ शावर के नीचे कपड़ों समेत खड़ी
ठिठुरते हुए भीग रही थी। मैं जुनूनी अंदाज में अपने लबों को पागलों की तरह अपने हाथों से मसल रही, इसका लम्स मिटाने की कोशिश कर रही थी। असद गुस्से इश्तियाल से एक ही जिस्म में इसकी तरफ बढ़ा। इसका ऐसे लम्स मिटाना असद यार खान के सीने पर जैसे कोई फूलता पानी उंडेल चुका था। असद यार खान ने इसके करीब पहुंचते इसका हाथ पकड़ा, जिससे वो अपने लब मसल रही थी। छोड़े मुझे। आबिर अपना हाथ छुड़वाते हुए छटपटाई थी। असद इसे दीवार में पटकते इसके करीब हुआ। पानी की बौछार खुद पर गिरते असद यार खान ने बुरी तरह अपने जबड़े खींचे थे। वो बर्फ जैसे ठंडे पानी के नीचे खड़ी थी। ये क्या पागलपन है? मरना चाहती हो क्या? असफर ने इसके इतराफ में अपने दोनों हाथ जमाते गुस्से से गर्जा। पानी की बर्फ जैसी बूंदें असफर यार खान पर गिरती अब इसे भिगो रही थी। आपका लफ्ज मिटाने के लिए मुझे मरना भी पड़ा तो मैं आज मर जाऊं। आबिर असफर यार खान की आंखों में देखते सपाट लहजे में चीखी थी। अच्छा तो ऐसी बात है। असफर इसे देखता तंजिया बोला था। ऐसी ही बात है। आबिर ने असफर को शोला बार निगाहों से घूरते जवाबन कहा। तो ठीक है, फिर आज मेरा लम्स मिटा कर दिखाओ। ये होंठ तुम्हारे जख्मी किए हैं। अब मैं तुम्हारे पूरे बदन पर अपनी जुनूनियत के निशान छोड़ूंगा। वो एक एक लफ्ज जब आते इसके चेहरे पर अपनी सुलगती सांसें छोड़कर बर्फीले लहजे में बोला। असफर ने टैप घुमाते गर्म पानी ऑन किया था। इसे अपने करीब गिरते अपने सीने में सख्ती से भींचा। आबिर इसकी बेरहम गिरफ्त पर फड़फड़ा कर रह गई। उसका मचलना महसूस करके इसे सीने में खींच गया था। आबिर इसकी बेरहम गिरफ्त पर मचल कर रह गई थी। वो उसके तड़पने मचलने पर मुसलसल अपनी गिरफ्त में सख्त किए जा रहा था। जितना मचलोगे जाने मन इतना ही खुद में कहत करूंगा। वो उसके कंधे पर अपने दांत शिद्दत से गाड़ते गुर्राया। आबिर इसकी शिद्दत पर तड़प कर रह गई। असफर ने इसे दीवार के साथ लगाते इसके दोनों इतराफ में हाथ जमाए थे। आबिर गहरी हुई होती सांसों से इसे गुलाबी आंखों से देख रही थी। अब मिटा कर दिखाओ। असफर इसके कंधे पर अपने दिए हुए सौगात को देखते तंजिया बोला था। आबिर ने गुस्से से असफर को घूरा, अपना कंधा नाखूनों से नोच डाला। अब वहां ऐसी शिद्दत की जगह आबिर के नाखूनों के नोचने के निशान थे। असफर की आंखों में ये देखते शोले लपके थे। असफर ने हाथ बढ़ाकर इसके दुपट्टे में लगी पिंस उतारते इसका दुपट्टा एक ही झटके से खींचा, तो वो शोल्डर से पिन से अटैच था जो चर की आवाज से इसके वजूद से उतरता असर यार खान के हाथों में था। वो फटी फटी निगाहों से असर यार खान को देख रही थी, जो दहकती आंखों से इसे देख रहा था। वो बगैर दुपट्टे के भीगे हुलिये में इसके सामने खड़ी थी। असफर ने इसके मजीद करीब होते इस्तजाइया निगाहों से आबिर को तहीर सदा गहरी आंखों में झांका। आज मैं तुम्हारे वजूद के रोम रोम पर अपनी शिद्दतों के निशान छोड़ूंगा। देखता हूँ तुम ये लम्स कैसे मिटाती हो। असफर की गुर्राहट पर आबिर ने जख्मी नजरों से इसे देखा था। शुरुआत इस तो मैंने इसने की थी, तो अब क्यों इसकी बातों पर तड़प रहा था? असफर, आबिर ने सिसकी ली थी। इसके उसके दिल के हिसार से खुद को छुड़वाना बहुत मुश्किल था। वो उसके हिसार में हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी कलाइयां बेदर्दी से जकड़े इसकी हर पुकार पर हर तरह मजाहमत नजरअंदाज किए पहले से भी ज्यादा बेरहमी दिखाने लगा। आबिर की आंखों से अब बेबसी के गर्म स्याल बहने लगा था। वो सिसक कर रह गई थी। वो उसकी गिरफ्त में हिल भी नहीं पा रही थी। इसकी फुरादे गिरफ्त की इसकी चूड़ियां पहने कर लाई, पर लम्हा ब लम्हा बढ़ रही थी। वो उसकी शिद्दतें बहुत बेरहमी से इसके बदन पर अपनी सौगातें छोड़ रही थी। असफर ने इसकी गर्दन से मुंह निकालकर इसके बहते आंसुओं को सर निगाहों से देखा। चलो मिटा कर दिखाओ मुझे मेरा लफ्ज। असफर ने इसकी आंखों में देखते एक एक लफ्ज पर जोर देते फिर से गुर्राया। आबिर इसे देखते गुस्से से मुंह फेर देगी। असफर इसको इसका एक्ट मजीद गुस्से में मुब्तला कर गया था। निकाह की पहली रात इसने बहुत फर्मा बरदारी से खुद को इसके सुपुर्द किया था। इसने सारी रात बहुत बेरहमी से इसके नाजुक वजूद पर दिखाई थी। तब तो इसने एक बार भी इसे झटका नहीं था। आज इसका ऐसे झटकना ऐसे शदीद इश्तियाल में मुब्तला कर गया। बस मैं मुंह दबोचे अपनी तरफ करते इसके लबों पर शिद्दत
سے جھکا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک بار پھر سے قہر ڈھانے لگا۔ اب کی بار شدت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر دیے ہوئے زخم کی پرواہ کیے بغیر اس کے دانت گاڑ گیا تھا۔ عابیر کے رونے کی شدت میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اس کی سسکیاں سنتے اور اپنے حلق میں اس کے لبوں کا خون گھلتے محسوس کرتے۔ اس پر رحم کھاتے اس سے الگ ہوا۔ عابیر گہرے سانس لیتے اپنا تنفس درست کرنے لگے۔ چلو اب یہاں سے بھی مٹا کر دکھاؤ مجھے۔ اس کے زخمی لبوں پر انگوٹھا نرمی سے پھیرتے استزائیہ مسکرایا۔ وہ گہرے سانس لیتی بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو میری جان، تم نے جو شغل ابھی لگا رکھا تھا، جس طرح میرا لمس مٹھا رہی تھی، میں تو چاہتا ہوں آج ساری رات ہر جگہ سے میرا لمس مٹانے پر لگا دو۔ اس کی طنزیہ مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ اسے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے اسے دور ہوا تھا۔ چلو اب مٹاؤ میرا لمس، اسفند نے اس کے سینے پر باندھتے طنزیہ کہا۔ عابیر گہرے سانس لیتی بے بسی سے اپنا زخمی لب کاٹ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کیری آن، وہ غصے سے بولا نہیں دھاڑا تھا۔ عابیر کی ہیزل گرے نم آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی سی چبھن تھی۔ درد بھی وہ خود دیتا تھا اور ریئیکٹ بھی ایسے کرتا تھا جیسے وہ خود درد میں ہے۔ ہیزل گرے آنکھوں میں اس کا عکس تھا تو نیلی آنکھوں میں بھی عابیر کو اپنا عکس دکھائی دیتا تھا، مگر شاید مرد نفرت سے محبت پر حاوی ہو جاتی ہے۔ عابیر کی آنکھیں شدت گریاں سے جلنے لگی۔ اس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ عابیر کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ شاور سے پانی ٹپکتا وہ دونوں کی سانسوں کو ہموار کر گیا تھا۔ پلیز اسفل، عابیر بے بسی سے ستم کر کے سامنے گڑ گڑائی تھی۔ نو جانے مت، آج نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم ہر جگہ سے میرا لمس مٹاؤ۔ تمہاری حسرت میرا لمس مٹانے کی ادھوری نہ رہ جائے۔ وہ استزائیہ مسکراتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ اب وہ اسے شعلہ وار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ عابیر اپنی گہری نم نگاہوں سے بے ترتیب سانسوں کو بحال کرنے کی شکوہ کنا نگاہوں سے سکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دونوں آنکھیں چپکنے کو تیار نہ تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ اسفند ابھی تک اس کی کلائیاں جکڑے ہوئے تھا۔ مٹا کر دکھاؤ مجھے۔ وہ اس کے اس طرح دیکھنے پر ایک بار پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ اسے آج سچ میں ان ہیزل گرے آنکھوں سے نفرت ہوئی تھی، جس کی جان کا ہزارہ تھی۔ تو ایسے دیکھتی تھی تو وہ تڑپتا تھا، نہیں دیکھتی تھی تو وہ جانب بھی تڑپتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹہری شبنم تو اسے سخت جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیتے، اس کی آنسوں سے بری طرح مشتعل کرتے تھے۔ عابیر اسفند یار خان کی آنکھوں میں دیکھتے خاموشی سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ اس کے پہاڑی وجود کا مقابلہ کرنے کی خود میں سکت نہیں پا رہی تھی۔ اسفند کے جنونی انداز اور کچھ شاور سے گرتے بہتے پانی نے اسے بحال کر دیا تھا، تلوے کے گہرے زخم نے بھی اسے کمزور کر دیا تھا۔ اسفند کچھ پل خاموشی سے اس کی بند آنکھوں سے گرتے آنسو کو دیکھ رہا تھا، پھر اسے اپنے سینے سے لگاتا خود میں بھیج گیا۔ اسفند کچھ پل خاموشی سے اس کے بند آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا، اس پر سینے سے لگاتا خود میں بھیج گیا تھا۔ عابیر نے اب کی بار مزاحمت نہیں کی تھی۔ اس نے اسے اپنے سینے میں بھیجتے اس کے کندھوں سے ڈھلکتی میکسی اوپر کرتے اس کی زپ بند کی تھی، اسے خود سے علیحدہ کرتے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ وہ سردی سے بری طرح کپکپا رہی تھی۔ اسفند کچھ پل لب بھیجتے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھتے اسفند نے روف شاور آف کیا۔ وہ دیوار میں سمائے آنکھیں نیچے بہت بری طرح کپکپا رہی تھی، اس کے گلابی زخمی ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ اسفند یار خان کی گہری گرم نگاہیں اب اس کے چہرے پر جم رہی تھی۔ وہ سچ میں بے انتہا خوبصورت تھی، سنہری رنگت، تیکھے نکوش، سنہرے بال، لمبے سلکی بال۔ تو آج تو وہ اس کی ماتھا پٹی میں غضب ڈھا رہی تھی۔ اسفند نے بے اختیاری سے اس کی ماتھا پٹی کو چھوا جو اسے بہت اٹریکٹ تھی۔
भीगी जुल्फें जो इसके आरस को छू रही थी। असफर ने नरमी से इसके आरस से जुदा की। इसके खूबसूरत उभराए आरस पर नरमी से अपनी उंगलियां फेरी थी। इसकी उंगलियां नरमी से सरसराती इसके शफाफ आरस से होती इसकी शफाफ गर्दन पर आ ठहरी थी, जहां अब इसकी शिद्दतें मौजूद थी। असलम की उंगलियों की बेबाकी बढ़ती जा रही थी। वो दीवार के साथ तेक लगाए बेसुध पड़ती जा रही थी। इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि असफन के बेबाक लम्स पर वो इसे दूर झटक सके। कुछ देर पहले इसके झटकने पर इसका जुनूनी ऐंठ सह चुकी थी, अब मजीद सकत न रही थी। असफन के हाथों की बेबाकी बढ़ते इसकी उंगलियों की बेबाकी भी बढ़ती जा रही थी। उसकी गहरी निगाहों का मरकज अब इसके बदन के नशीबो फराज पर था। वो यकदम करंट खाकर इससे दूर हुआ था। वो गुस्से में ये महसूस कर रहे नहीं सकता। वो भीगे हुलिये में कयामत सा मंजर पेश कर रही थी। भीगी मैक्सी इसके बदन के साथ चिपकी थी। इसका लहरों जैसा बदन असफन पर यकदम बिजलियां गिरा चुका था। वो इस तरह दीवार के साथ तेक लगाए आंखें मीचे लरसते हुए भीगी लफ्जों के साथ इसके होश होने का इसके होश ठिकाने लगा चुके थे। पूरे बदन में सामने खड़ी अपनी महरम की कुर्बत लम्हों में इसकी जान का अजारा बनकर इसके अनगिनत जवानी पर जोर जोर तकाजे जुगा चुकी थी। निकाह के बाद पहली रात की गुर्बत का एक एक मंजर इसकी आंखों के आगे लहराता इसे मजीद बेचैन कर चुका था। वो इस रात का एक एक लम्हा भूला ही कब था। असफर अपने घने बालों में हाथ फेरते रुख पलट गया था। यहाँ तक तो ठीक था, मगर वो इससे जबरदस्ती नहीं कर सकता था, ना ही वह बात से पीछे हट सकता था। जब इसे सामने खड़ी लड़की को छोड़कर जाना ही था तो वह इसके करीब क्यों जा रहा था। वो तेज तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा, वॉशरूम के वस्त में रुका था। वो जिस तरह कपकपा रही थी इसके पाँव पर जख्म का सोचते हुए इसकी तरफ मुड़ा। वो इस तरह कपकपाते जमीन पर बोझ होने लगी थी। वो एक ही निजामत में इस तक पहुंचते इसे अपनी बाहों में थाम ले चुका था। आबिर, हसन ने तड़पते हुए इसे पुकारा। इसके कपकपाते होंठ अब नीलाहट का शिकार हो रहे थे। आबिर ने बमुश्किल ही आंखें खोली। हसन यार खान को देखा था, वो कपकपाते हुए बाहों में समा गई। असफन, मामा मुझे सर्दी लग रही है। मामा मेरा सर दर्द से फट रहा है। मैं इसके सीने इसके साथ लगी सर्दी से कपकपाते अपने होश खो रही थी। इसका बुरी तरह कपकपाता बदन महसूस करते असफन ने बाहों में भरा वॉशरूम की अलमारी से अपना बाथरूम निकाला। इसकी मैक्सी की जिप खोलते वो कंधों से नीचे खिसका गया था। आबिर की आंखें खोलते कमजोर सी मजाहमत की थी। असफर इसकी मजाहमत पर नरमी से इसके हाथ थाम गया। आबिर अपना कांपते हुए अपनी आंखें मीच रही थी। बर्फीले पहाड़ी के नीचे भीगने पर इसका पूरा बदन यख हो रहा था। सर्दी में सर दर्द की टीसें उठ रही थी। पाँव का जख्म की वजह से अब पाँव पर वजन भी नहीं डाल रहा था। असफर ने नरमी से इसे गाउन पहनाया। इसके दौरान इसके होश रवा बदन से नजरें चुराता रहा। असफर के माथे पर पसीने की कतरे नमूदार होना शुरू हुई थी। आसान नहीं था इसके होश में रवा क्यामत खेज खूनी ख्यास कुर्ती से दूर रहना। वो उसे बाथरोब गाउन में देखते मजीद बहका था। आबिर बमुश्किल ही अपने कदमों पर खड़ी थी। ये देखता वो इसे बाहों में उठाए वॉशरूम से बाहर आया। वो बैठ के वसत में लिटाएगी पर कंबल अच्छी तरह लिया। अब वो सर्दी की शिद्दत से तकरीबन नीम बेहोश हो चुकी थी। असफर ने जल्दी से में लगा सेंट्रल हीटर ऑन किया। वॉशरूम से टॉवल लाते वो आबिर के बेड पर बैठा था। इसकी माथा पट्टी एहतियात से उतारते साइड टेबल पर रखी। इसके झुमके नरमी से उतारे थे। टॉवल से नरमी इसके गीले बाल खुश किए। इस दौरान ये एक बार भी इसके चेहरे पर निगाह नहीं डाली थी। वो इसे नहीं देखना चाहता था जो इसका सब कुछ इससे छीनना चाहती थी, और वो इसका कभी नहीं होना चाहता था। असफन अब फर्स्ट एड बॉक्स पकड़े इसके पैरों पर बैठा इसका पैर पकड़ कर देख रहा था। जहां
گہرا زخم تھا، پانی کی وجہ سے خون رک گیا تھا مگر زخم بگڑ گیا تھا۔ اسفر نے اینٹی سیپٹک لگا کر اچھی طرح اس کا زخم صاف کرتے آئنٹمنٹ لگاتے پٹی کی۔ وہ اب دوبارہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کی گردن اور اس کے نیچے اس کی شدتوں کے گہرے نشان موجود تھے۔ وہ اپنی صفاکی پر اپنا نچلا لب دانتوں میں پیوست کر گیا تھا۔ وہ اس کا لمس مٹانا برداشت نہیں کر پایا تھا، پتہ نہیں وہ خود پر کیوں قابو نہیں رکھ پایا۔ وہ فطرتاً بہت نرم طبیعت کا تھا مگر عابر کی ہر بات اسے بری طرح چبھنے لگتی تھی، وہ بھی تب جب وہ اسے ایسا باور کرواتی جیسے اس پر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ اس سے دور جانا چاہتا تھا مگر اس پر اپنا حق کبھی ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو طے تھا وہ اس کی ملکیت میں ہمیشہ رہے گی، ایسے ہی اپنے بھائی کے کیے کی سزا بھگتے گی۔ اس کی بیوی ہوتے ہوئے بھی وہ بیوہ کی زندگی گزارے گی۔ آخر وہ خانزادہ تھا، کیوں اپنے بدلے کے لیے اپنی عزت کو چھوڑے؟ اس کی عزت مرتے دم تک اس کی ہی عزت رہے گی، اور یہی تو اس کی سزا تھی۔ وہ ساری عمر اس کی محبت اس کی جدائی میں جلے۔ وہ اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھتے سلگتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔